बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मे आई योर अटेंशन प्लीज। मेरी तरफ मुतवज्जो होइए भाई साहब। Our next facilitator is one of the best facilitator of this institute. Believe you me, you will enjoy this facilitator. ये फैकल्टी की मेंबर हैं और मैंने इनको सुना हुआ है एंड मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। She is basically by profession is an educationist in the field of education for the last 22 years. पैशन इनका ट्रेनिंग एंड सोशल वर्क है। लॉयंस हैं सिंस 2017 से। डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है लॉइन क्वेस्ट, 2 दफ़ा रह चुके हैं, 2021 में, 2023 में भी रहीं। और वुमेन एंड फैमिलीज की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हैं 2022 में। विद ह्यूज क्लैप प्लीज वेलकम सुंबल अमीन। आपका वेलकम उनको इसका एहसास दिलाए कि वो किसी अच्छी जगह पर किन्हीं पढ़े लिखे लोगों में आई हैं। थैंक यू। Ji, yes, Lions. Am I audible now? First of all, Ji, much respect and high regards to all the line faculty members who are here and given me the chance to perform. And secondly, warm appreciation and my best wishes to all the emerging line leaders. I really wholeheartedly appreciate your concern and interest to put yourself in the role of leadership. हमें आपको पता है कि पाकिस्तान में लीडरशिप की कितनी अशद ज़रूरत है, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशंस, इवन फॉर द रनिंग दिस कंट्री ऑन प्रोग्रेसिव पाथ. सो I hope you are enjoying your ELLI journey with knowledge, wisdom and exploration together. So let's have some more. थोड़ा सा noise होनी चाहिए और thumbs up करें ऐसे. Come on, do it. Let's get some more. आवाज नहीं आई, साकिब रहीम वाला जज्बा चाहिए. Let's get some more. Yes, inshallah. When you will open your mind, you will accept the knowledge and whatever we will tell you today, right? So let's begin. This session is about, I just forgot, what was my session title? Ms. Sonia Suri, can you please help me? What was my session about? आपको भी याद नहीं है? चलें, let me try this thinking head. Yes, I got it. It's creative thinking. So let's begin the session, creative thinking. Be creative, come on. Thank you. G, creative thinking, most wanted, highly demanded, and I think extremely recognized skill of the day. Do you agree? I think there is no profession, no field where we don't need creativity. It is an high order skill, don't you think? So, to you, what does creativity means? There are colorful chits on your table, please write and then describe. It is very important to note down your ideas and then speak. Thank you. G, you all are having thinking hats on your jackets or shirts. Yes, then your thinking should be sharp. Yes, please come and note over here. G.
जी लिख दीजिए, अदरवाइज जस्ट से आई विल राइट फॉर यू. What is creative thinking or creativity? Both. To think new ideas in every field, in every New ideas. Right. Thank you, sir. in every field. In every field. Okay. G, please. Any more? Something different? Problem solving. Right. Please exert your brains. And I want that somebody should circulate mic to the person who would like to speak. G, please. Whoever is raising the hand. It means Sorry? imaginative and creative thinking, innovative, based on innovation, सर बाकियों के लिए भी कुछ रहने दें, ठीक है? Innovation innovation. or imaginative. Something differentiated from others, something matchless and unmatched, something Will you write, please? Will you please write here? Yourself. Gee, please, more ideas are needed. Yes. When we are talking about creative thinking, so it means the thinking process should be continued. Out of box. Gee, Mr. Asad, write down. Anybody else? Gee, your input. Problem solving is already written. Gee, Dr. Basit. Challenging the status quo. Okay, challenging the status quo. I think enough. G, please. Impactful, right? Okay, that is in fact smart thinking or smart work, right? Okay, changing style, right? This is also creativity. Copy paste करें और थोड़ा सा style बदल दें, time Roman को Calibri में कर दें, तो this is creativity, right? जी बिल्कुल आप सबकी इनपुट करेक्ट है. क्रिएटिविटी मीन्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सिमिलरली थिंकिंग अबव एंड बियॉन्ड रूटीन अफेयर्स. आपकी जो एक बेसिक थिंकिंग की स्ट्रेटजी है उससे जब आप अबव एंड बियॉन्ड सोचते हैं, समथिंग न्यू, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? दीज आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय अदर्स. तो उससे अट्रैक्शन से वो क्या उसको फीडबैक मिलता है? डिफरेंट होने की वजह से, इनोवेटिव होने की वजह से दोज थिंग्स क्लिक एंड स्ट्राइक, और सब लोग उस आइडिया को ज़्यादा अटेंशन देते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ एन हाई ऑर्डर स्किल. जो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव थिंकिंग है, दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्किल. ऑर्डिनरी में आप क्रिएटिव नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट रिमेंबर, यू कैन जस्ट कॉपी, यू कैन जस्ट इम्प्रोवाइज द वर्जन. लेकिन क्रिएटिविटी, व्हेन यू एनालाइज, व्हेन यू एवेल्युएट, एंड देन यू क्रिएट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो क्रिएटिव थिंकिंग एक लीडर के लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यू ऑल आर हेयर टू बिकम अ लायन लीडर. आपके लिए क्यों ज़रूरी है? लीडर ने क्रिएटिव होकर क्या कर रहा है? थोड़ा सा बेटे या तो लाउड बोलिए और अदरवाइज प्लीज माइक दें. जी जी प्लीज बताएं. नहीं नहीं ये आजकल सर्वेंट लीडर की बात आ रही है. वो लीडरशिप जो है वो सक्सेसफुल नहीं है जो सिर्फ रूल करने आती है. मिस्टर अहमद इस्लाम जी. सर इसलिए लीडर होना ज़रूरी है ताकि वो अगलों की बात को पहले एक्सेप्ट करे, फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्व, देन इनोवेट, और फिर उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में जा Exactly, सके. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लीडर के पास मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं. बिकॉज अगर हम बात करें किसी क्लब की लीडरशिप की, तो वो लीडर कौन है? एक प्रेसिडेंट. और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो उसका लीडर कौन है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर. डेफिनेटली. अब उसमें वजीर कोई भी हो, लेकिन लीडर को भी इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डिटरमिन्ड और इतना विजनरी होना चाहिए कि वो खुद भी अहलियत रखता हो इस बात की कि हमने क्या डिसीजन लेना और प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है.
क्योंकि जहाँ पर भी 2 से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ क्या होगा? पॉलिटिक्स। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक लीडर की। और लीडर की ये वाइटल क्वालिटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे और दूसरा काम क्या करे? थोड़ा सा और सोचकर बताएं। यू आर वेरी क्लोज टू इट। नाउ देयर आर 2 कॉमन फीचर्स ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर है और डिसीजन मेकर है तो दैट पर्सन कैन बी अ लीडर इजीली। बेटा डेमोक्रेटिक होगा तो क्रिएटिविटी में डेमोक्रेसी आ जाती है और डिप्लोमेसी भी आ जाती है। लीडर होने के लिए ये सब क्वालिटीज चाहिए, बट मेजरली वी नीड टू फोकस अपॉन 2। वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, द अदर वन इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, ये एक थंबनेल रूल है। तो लीडरशिप में जी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि कम्युनिकेट करना। इस सारे सेशन का मकसद है कि जो भी यहाँ पर शौक से आए हैं अपने आप को इस रोल में फिट इन करने के लिए, या वो फोर्सी करते हैं दियर फ्यूचर इन लीडरशिप एट लीडरशिप स्केल, तो वो ये चीज़ की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करें कि जब आप क्रिएटिव थिंकर होंगे तो यू कैन मेक अफेक्टिव प्लानिंग and you can resolve different problems with different strategies। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पर आप बस मतलब बाय ऑर्डर किसी चीज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि लीडर के पास तो ये भी राइट है ना कि वो बाय ऑर्डर कह दे कि बस दिस विल हैपन, दैट्स ऑल। बट नाउ डेज एज आई सेड लीडरशिप इज़ डिफरेंट, तो फिर उसका क्राइटेरिया और स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने यस्टरडे देखा अफेक्टिव जो मीटिंग कंडक्ट करने के तरीके थे, उसमें भी आप देखें कि एवरीबडी वाज गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। हर तरह के लोगों को लेकर चलना, क्योंकि टीम में आपके पास सारे पेंगुइन्स तो नहीं होते, ठीक है ना। यू हैव डाइवर्स पीपल इन योर टीम, तो सबको किस तरह से लेके चलना है, उनकी माइंड मैपिंग कैसे करनी है, उनको अपने आइडियाज़ को कैसे बताना है, कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स, so that all burden and responsibilities lies on a leader, so he has to be a good creative thinker। जी, जहाँ पर बात हो थिंकिंग की, विजडम की, नॉलेज की, और वहाँ पर हम आइंस्टाइन का नाम नहीं लें, ये तो ठीक बात नहीं है। तो आइंस्टाइन साहब की राय क्या है क्रिएटिव थिंकिंग में? He said, seeing the things like other people see, but thinking like no one else has ever thought। कुछ अंडरस्टैंड किया आपने इस बात से? एक सेब गिरा, आपके ऊपर भी गिरते होंगे बेर, सेब, कुछ भी, बट हम उठाते हैं और खा लेते हैं कि अल्लाह की तरफ से फल मिला, जस्ट एंजॉय इट। लेकिन न्यूटन ने उसे कैसे लिया? उसने तो उसको उस तरह से नहीं देखा ना। He also see the apple like an apple, but he thought like nobody else have thought। नहीं, वो कोई और था, वो न्यूटन नहीं था। न्यूटन बैठा हुआ था ऑलरेडी कपड़े पहनकर, और तब सेब गिरा था। जी प्लीज। न्यूटन उसने जी लॉ ऑफ ग्रेविटी इंट्रोड्यूस करवाया था। जी प्लीज। My dear, you are not audible to that वो table। थोड़ा अपसेट थे और वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे, पीस ऑफ माइंड के लिए दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, और अचानक से उनके सर पे जब सेब आके गिरा तो सबसे पहले तो उन्होंने गुस्सा किया और कहा कि मेरा ही सर मिला था गिरने को, ऊपर नहीं जा सकता था। तो दैट वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे सर पे ही आके क्यों गिरा। जी दैट डेफिनेटली वाज द इनिशिएटिव से पॉइंट। स्टार्ट होती हैं, जनरेट होती हैं जब आप व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु पे काम करते हैं। सबसे पहले क्रिएटिविटी स्टार्ट ही यहाँ से होती है, वो 5 Ws and 1 H से। जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग यू शुड आस्क सम क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, एंड देन व्हेन यू विल फाइंड द आंसर you will definitely make a better decision and solve your problem in a better way। So moving next to this, कुछ एक्टिविटी हो जाए। क्रिएटिव थिंकिंग की बात है तो फिर एक्टिविटी के बगैर तो क्रिएटिविटी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज ओपन योर पार्टिसिपेंट मैनुअल्स, पेज नंबर 1, and see this activity over there। Do you have pens?
Okay. Connect all these dots with 6 straight lines without putting up your pen. 2 conditions हैं, 3 minutes हैं इस एक्टिविटी के लिए. Six straight lines only you are allowed to draw. Read the instruction, beta. First of all, read the instruction. Can you connect the dots below by drawing 6 consecutive straight lines without lifting your pen off the paper? Badge का है. Do it on a rough paper and then please draw it neatly. बस right up it. There is another activity. 2 है ना, इसके बाद देखो. अरे नहीं ना मिले हुए, ये इसके साथ नहीं मिला हुआ, ये इसके साथ नहीं मिला हुआ, ये इसके साथ नहीं मिला हुआ. नहीं नहीं, सारे तो मिलाना है. डॉट. हाँ, यहाँ से इन्होंने जो टर्न लिया ना वो विदाउट डॉट लिया है ना. दिस इज जस्ट रॉन्ग. हाँ ठीक है, रेस्ट आर करेक्ट. जी बेटा. जी डियर, डू यू नीड एनी हेल्प ऑफ माइन? अच्छा ठीक है, थैंक यू. फिर दीज 2 टेबल्स को आप टेक ओवर कर लें. 1 2 3 4 5 6. सर ये ठीक है बट ये डॉट रह गया ना. नो डॉट शुड बी लेफ्ट. जी आपका हो गया, आपका सर हो गया, आपका भी हो गया, आपका भी. अच्छा जी, द टाइम इज आप. इफ यू हैव डन इट प्लीज काइंडली ब्रिंग दिस टू मी. 4 5 7 लाइन्स. जी टाइम इज आप. प्लीज ड्रॉप डाउन योर पेन. वी विल डिसाइड लेटर ऑन. There is another activity. After that, we will provide you the right solution. इसके साथ ही है, दोनों का इकट्ठा आंसर है. ओके जी, see the screen. दोबारा देखिए. There is another activity. Turn your page. Participant manual का next page. Activity is there. बेटा आप दूसरी एक्टिविटी कर लीजिए. वी आर कमिंग टू यू. वी विल टेल यू द राइट आंसर.
फिलिंग द टी पॉट। आपके सामने 2 टी पॉट दिए गए हैं। जो स्मॉल टी पॉट है इट कंटेन्स 32 आउंसेस ऑफ टी। बड़े में कितनी है ये आपने गैस करना है। हरी अप एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट फॉर इट। 2 टी पॉट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। छोटे वाले टी पॉट में 32 आउंसेस ऑफ टी है। जस्ट वेट, नोट डाउन प्लीज ऑन द कलर्ड चिट्स प्रोवाइडेड टू यू। आपके आंसर को बिल्कुल वैल्यू दी जाएगी, आप उस पर लिखिए। और ये क्वेश्चन आपके मैनुअल में मेंशन है, इसको वहां से गो थ्रू करें। स्मॉल टी पॉट कंटेन्स 32 आउंसेस ऑफ टी। तो बड़े वाले पॉट में कितना होगा? होल्ड योर एक्साइटमेंट। ये तो आप खुद ही देखें ना। अभी नहीं, प्लीज जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। बेटा सवाल सुनिए गौर से। ए टी पॉट में 32 आउंसेस ऑफ टी है। बेटा आपके पेज पे भी लिखा हुआ है। अगला पेज तो करें अपने मैनुअल का। क्या ही हो गया है अहमद भाई। अच्छा जी, छोटे टी पॉट में 32 आउंसेस है, बड़े में कितनी होगी चाय? कम ऑन गेस। क्रिएटिव थिंकिंग। आप 48 कह रहे हैं। नोट कर लें अपनी चिट पर जल्दी से आंसर। अपने पास कलरफुल चिट रखें, उस पर आंसर नोट कर लें। मैंने तो कितनी दफा कर दिया बेटा। ए छोटे पॉट में 32 आउंसेस टी है ए पॉट में। बड़े वाले में कितनी होगी? दैट्स ऑल। गैस करें बेटा। चलो आप लिख लो ना, इसे लिखें, आपने चिट पे लिखे। देखें एक्साइटमेंट में कभी कभी इंसान रॉन्ग भी कर जाता है। आपके बाकी जो न्यूरॉन्स है ना वो डाउन हो जाएंगे। गौर से देखें अभी भी। बस क्वाइट। क्लोज। Okay, wait a minute. We are going to provide you the solution. I would like to take help from Ms. Sonia Suri. Kindly provide the solutions on your table. अच्छा जी, जवाब आप बताएं। टेबल, दिस टेबल 0, ओके। 32 नोट कर लिया। 0, गुड। आप 16 कह रहे हैं। एक फैसला करें टेबल। 0 लॉक कर लें इसे जी। 0 आप बताएं जफर भाई। 32 कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली कह दें। चलें जी। 31 लॉक कर लिया जफर भाई का। लेस देन 32 31 होता है। चलें ओके जी। आप कौन इसका आंसर बताएगा? दे आर द राइट 16। लॉजिकली प्रूव करें। कैसे हाउ? आपने 0 बोला है। 0 बोला है। 0 अच्छा मुझे मौका दें, मैं आपको बताऊं प्लीज। काम डाउन। देखिए इस तरह तो टाइम अप हो जाएगा। मेरे पास तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। तो लेट मी आंसर द क्वेश्चन। आप हेल्प करेंगी? मासूमा प्लीज आए, मुझे बताएं। माइक दें इन्हें मासूमा को। कैटल ए जो है ना उसमें 32 है। सॉरी जस्ट अ मिनट बेटा। Hassan, Mike. Where is Hassan? Where is Mike?
अच्छा लिसन टू मी, मिस मासूमा ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। अब इसको आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप वाकई आंसर जानना चाहते हैं तो यू हैव टू पे अटेंशन। जफर भाई सीख लें। अच्छा जी, ए कैटल जो है इसकी आप देखेंगे स्पाउट कहाँ तक है, बिल्कुल पैरेलल टू लिड। इसका मतलब है ये बिल्कुल भरा हुआ है मुंह तक, ठीक है। इसमें कितने आउंस टी है, 32। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। ये जो बी है इसकी कहाँ पर है स्पाउट, यहाँ पर। ये इसका हाफ बन रहा है एग्जैक्ट। तो 32 का हाफ कितना होता है, 16। देखिए अगर इसमें 16 आउंस से ज्यादा टी आप पोर करेंगे तो वो तो बाहर आ जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। लॉजिकल? तो थोड़ा सा हमने देखे सिर्फ साइज को देखा, हमने सिर्फ एक साइज देखा कि वो देखने में बड़ा है, तो डेफिनेट इट कंटेन्स मोर देन 32। तो यहाँ पर हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग यूज करना चाहिए थी। हमने क्यों नहीं कर पाए आंसर इसका दे पाए? कोई बता सकता है इस बात का? ये भी एक बड़ी क्रिएटिव बात है। सोचें, व्हाई वी कुड नॉट आंसर इट करेक्टली। आप लोग एक तो क्वेश्चन नहीं ध्यान से सुन रहे, ठीक है ना, एक तो आपको अटेंशन देना पड़ेगी। नंबर 2, यू पीपल आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। इधर से सुना, इन्होंने 0 बोला, मैं भी 0 कह देता हूँ। मेजॉरिटी को हम अथॉरिटी समझते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था कि अगर वाकई इसमें डबल होता तो इसमें रिडल या पजल में देने की जरूरत क्या थी। इफ इट इज एन एक्टिविटी, डेफिनेट इसमें कुछ तो ट्रिकी है। तो आपने अपना वो क्रिएटिव स्विच ऑन नहीं किया। जिन्होंने किया वो आंसर दे लिया उन्होंने। जी आप सॉरी, इनाम सबको मिलेगा, ये इनाम ही तो है, क्या सिखा रहे हैं आपको? सर गिफ्ट को छोड़ें, लर्निंग इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। नॉलेज से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। वो हाँ जी बिल्कुल दिखाएं जी। ये आपका कहाँ है, आप अपना दिखाएं ना। अच्छा सर इसमें देखें, ये आपके पास अब आंसर्स हैं। हम यूजुअली अपने हमारे, लिसन टू मी प्लीज, इसको रॉन्ग करने का क्या मकसद है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमने बॉक्स के अंदर ही रहना है, ठीक है। हम में से बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि वी कैन एक्सटेंड द स्ट्रेट लाइन, वहां से टर्न ले सकते हैं। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन मैडम मासूमा ने भी दिया है, एंड दोज आर 6 लाइन्स। तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इस चीज से आपको क्या सीख मिलती है इन दोनों, ये जो हमने अभी एक्टिविटीज की? व्हाट डू यू थिंक? आउट ऑफ द बॉक्स कहना तो आसान है, ये बॉक्स का भी अभी मुझे बताना है आपने, ये बॉक्स कहां पर है? आउट ऑफ द बॉक्स वो कहां है? तो क्रिएटिव थिंकिंग भी तो यहीं से करनी है। अगर इससे बाहर आ गए तो बाहर से कौन सी क्रिएटिव थिंकिंग है? अब वो बाद में करते हैं बात, पहले इसके ऊपर आए। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू इट अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन मैप? रेज अप करें हैंड। आप कर पाए थे ये डॉट्स वाला? सर मैं डॉट्स की बात कर रही हूँ। हु हैज डन इट एग्जैक्टली लाइक द आंसर शीट? या चलें जैसे मासूमा का करेक्ट आंसर है, बट शी हैज डन विद अ डिफरेंट वे, बगैर पेन उठाए। आपने भी कर लिया है? अयाज भाई जरा चेक कीजिएगा। देखें हर प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एज अ लीडर यू हैव टू थिंक अपॉन इट। एवरी प्रॉब्लम मे हैव मोर देन वन राइट सॉल्यूशन। हम कहते हैं इसका बस यही है, डू और डाई, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होता। देयर आर मेनी अदर क्रिएटिव वेज के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसा कि सर ने अभी कहा कि अगर आपसे हल किसी बात का नहीं निकल रहा, यू हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, तो आप किसी आउटसोर्स से मदद ले लें, आप किसी से मशवरा कर लें, एडवाइस ले लें। इस्लाम में भी है। इसीलिए है कि समटाइम्स यू आर स्टक विद वन सोल्यूशन। आप किसी से जब कहते हैं वो आपको न्यूट्रल जज करके कोई और क्रिएटिव वे बताता है। तो ये भी लीडरशिप क्वालिटी है। लेट्स मूव ऑन। एक्सक्यूज मी, ये इनकी ये मैं इधर जी, इनकी ये वकास की ठीक है? ठीक है, चलें क्लैप फॉर वकास साहब। वकास साहब मैं चेक करूंगी, गिफ्ट देने से पहले आपका चेक होगा काम।
हमारे इस सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेशन को डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि आपको कम्युनिकेट किया जा सके कि क्रिएटिव थिंकिंग लीडरशिप के लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे पास इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है कि अप्लाई क्रिएटिव थिंकिंग मेथड्स टू एनहेंस आइडियाज़। आपके पास आइडियाज़ तो आते हैं, उसको एनहेंस कैसे करना है, ठीक है। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जनरेट न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर यूजफुल लाइन्स प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आप लायन हैं, आपने एंड ऑफ द डे कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई ना कोई सर्विस देनी है, या जो भी आपके काम हो उसमें आपके पास न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। तो हाउ यू कैन जनरेट एंड वर्क ऑन दैम। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। प्लीज़ आई नीड योर अटेंशन। आप लोग सब स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हों। आपको एक ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाया जा रहा है। नोट कर लें अपने आंसर अपनी कलरफुल शीट्स पर। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ब्लैक सरफेस पे वाइट डिज़ाइन है या वाइट सरफेस पे ब्लैक डिज़ाइन है? बेटे कंट्रोल योर आंसर्स, लिख लें। आई एम कमिंग टू यू टू कलेक्ट योर आंसर। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? आप इसको गौर से देखिए और हमें ये बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है। एक कैंडल स्टैंड है और 2 फेसेस हैं। आप समझते हैं कि ब्लैक बेस है और उस पर वाइट पैटर्न बना हुआ है या वाइट बेस पर ब्लैक फेसेस बने हुए हैं? आपने ये बताना है, ठीक है। जस्ट रेज अप योर हैंड इफ योर ग्रुप हैज डन इट। ओके मासूमा, ओके अब्दुल्ला बेटे, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम इमेज चेंज करना चाह रही हूँ। ऑल हैव डन इट। सबने अपने अपने आंसर्स लॉक कर लिए, लिख लिए जी। देयर इज अनदर ऑप्टिकल इल्यूजन। इसको गौर से देखिए और प्लीज राइट डाउन योर आंसर्स ऑन द कलरफुल शीट्स प्रोवाइडेड टू यू। ये दोनों का एक शीट पे भी आंसर आप लिख सकते हैं। पहले आपने क्या देखा और अभी आपने क्या देखा। ये इंडिविजुअल है, अपना अपना करें। हो सकता है डॉक्टर साहब ने कुछ और देखा हो, उन्हें कुछ और नज़र आ रहा है। आप और ये इंडिविजुअल आंसर है जी। जी इजहार साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको? गौर से देखें। क्या? हाँ ठीक है, और भी देखें ध्यान से। जी इस्लाम साहब। नहीं बेटे, इसका ये क्वेश्चन नहीं है। दिस क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन में नहीं आ रहा। ये अलहदा से एक पिक्चर है, इसको देखें। ये आपको देखने में क्या नजर आ रहा है? वो ब्लैक पे वाइट और वाइट पे ब्लैक क्वेश्चन पिछले वाले के लिए था। दैट इज नॉट फॉर दिस पिक्चर। ठीक है, लिख लें। आपने लिखा सर? गौर से देखें, गौर से देखें। यू विल फाइंड द आंसर। माशाल्लाह, यू ऑल आर वेरी क्रिएटिव। लिख लें बेटे। हाँ, बाद में देखें, फिर ऐसा ना हो कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। नोट कर लें, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। अच्छा जी, टाइम इज अप। किसी को और देखना है इसे या हम आंसर्स रिवील कर दें? ऑस्ट्रिच है, आपने लिख लिया? ठीक है, देखें जिसको जो लग रहा है वो बताता जाए। अब हम 1 बाय 1 जो रेज करेगा हैंड। अयाज भाई, अगर माइक आपके पोजीशन में है तो आप सर्कुलेट करें, और अगर हसन साहब इज हेयर तो वो सर्कुलेट करें। जी प्लीज, आंसर्स। खरगोश ही, रैबिट, खरगोश। इजहार साहब ने कहा खरगोश जी। अहमद इस्लाम साहब। काबली भाई, आप जवाब दें, ये क्या नजर आ रहा है? जाहिद काबली भाई, ये बड़ा आसान है, जरा तस्वीर देखिए, बताइए ये क्या है? माशाल्लाह, तजर्बे की रोशनी में पहचाने। कभी देखा हो आपने? बगला लग रहा है। बगला है, नोट कर लें, लिख लें। देखें जी ब्रदर, आप बताइए। अमीन साहब, रैबिट है, आपने नोट कर लिया है। असद भाई, आप भी यही कहते हैं रैबिट है? हाँ जी, आपने कह दिया था। जी मैडम, आप खरगोश ही है?
ठीक है। आप इस ग्रुप में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो एक्सेप्टेबल है। डक है, इन्होंने ऑस्ट्रिच कहा है, आप भी ऑस्ट्रिच के साथ जाना चाहेंगे? ठीक है, आप पेंगुइन बन गए हैं। जी दिस एहतशाम साहब, ये आंसर आपकी तरफ से आएगा, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करें। हम दोनों ही लग रहे हैं, डक भी और रैबिट भी दोनों। चले ठीक है। मैम 2 फेसेस हैं, एक डक है और एक रैबिट है। ये कौन बोल रहा है? जी प्लीज, ठीक है। और बताइए, आर यू रेडी टू नो द आंसर? जी उस्मान गिलन साहब। अच्छा, लेकिन अभी तो बताएं ना, कुछ तो आंसर दें। लगता तो रैबिट है जैसे पानी में हो ना, लेकिन आप डक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। मैम मेरे ख्याल से ये रैबिट है, राइट साइड पे इसका फेस है, लेफ्ट से नहीं देखना, राइट से इसको देखें, इसकी आंख भी उस साइड पे, राइट साइड पे, ये जो इसका जो बीक टाइप बनी हुई है इसके कान है बेसिकली, आई थिंक सो। ठीक है सर, हमने आप ही का ओपिनियन पूछा है, बिल्कुल ये इंडिविजुअल आंसर्स दें। अब हम इसको क्लोज कर दें, अगर किसी ने कुछ और आंसर देना तो प्लीज वी हैव द टाइम, हरी अप। स्पैरो लग रही है, ठीक है जी। एनिमल पेंटिंग या स्केच, इट्स अ स्केच। स्केच का नहीं पूछा, एनिमल कौन सा लग रहा है? ठीक है जी, Duck. ऑल डन। जी मिस, डक। ठीक है, आपने नोट कर लिया ना? ठीक है, बस गिफ्ट के टाइम पर आपने राइट आंसर बता देना। अच्छा जी, ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, और ये दरअसल दोनों ही हैं। इल्यूजन का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो एम्बिगुअस है, आपको पता नहीं चल रहा है। ये साइकोलॉजी में टर्म यूज की जाती है, कभी आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है और कभी लेफ्ट, ठीक है। व्हेन यू फोकस ऑन वन थिंग, तो कभी आपको किसी की अच्छाइयाँ नजर आने लगती है और कभी बुराइयाँ। तो ये बात है कि आप जैसा अपने आप को ट्रेन करते हैं वैसा है। लीडरशिप के अकॉर्डिंगली जो इनका आंसर है वो ये है कि जी एवरी टाइम डिफरेंट सिचुएशंस में बी परसीव्ड इन डिफरेंट वेज। एक सिचुएशन है वो आपको डिफरेंट लग रही है, दूसरे को उसमें कोई बेनिफिट लग रहा है। जी बिल्कुल, आप वो 6 और 9 की एग्जांपल दे सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि एनीबॉडी इज रॉन्ग। इसलिए आपके पास जब भी कोई अपनी ओपिनियन, एडवाइस या कोई इंफॉर्मेशन लेकर आए तो उसको ये कह के रॉन्ग ना कर दें कि जिस तरह से आप देख रहे हैं उसका नज़रिया वो नहीं है। तो दूसरों के नज़रियात को भी वैल्यू करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है। और हम इसका आंसर इसीलिए ज़्यादा लोग एक दे रहे थे कि हमें ऐसे लगता है कि वन आंसर इज करेक्ट आंसर, देयर इज नो अदर सॉल्यूशंस। तो ये भी रूल नंबर 2, ठीक है जी। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ फॉर दिस एक्टिविटी, पार्टिसिपेटिंग वेल। एक कोटेशन है, नथिंग इज मोर डेंजरस देन एन आइडिया, और स्पेशली व्हेन यू नो इट इज द ओनली वन यू हैव। थोड़ा सी इसमें फलसफा है, जरा गौर से देखें। कोटेशन है, आफ्टर ऑल नथिंग इज मोर डेंजरस देन एन आइडिया व्हेन इट इज द ओनली वन यू हैव। कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस पे? कौन रोशनी डाल सकता है? एक आइडिया कैसे डेंजरस हो गया? अभी तो हम आइडियाज की बात करें, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें। जी बेटे, माइक इज नीडेड, I want his answer must be listened by everyone. बेटे रेज करें हैंड so that he could help you out. जैसे मर्जी बता दें, माइक इज इन योर हैंड, स्पीक लाउड। जब आप अकेले होते हैं एक आइडिया प्रपोज करने के लिए, तो इट कैन आइदर बी राइट और रॉन्ग, हर बंदे की अपनी परसेप्शन है ना। तो आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि इट कैन मेक और ब्रेक योर, आपकी वो सारी जो राइट, persona जो होता है। somehow correct। जी कुछ और बताना चाहें? जी रेहान आबिद, कोई सीनियर भी अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताएं प्लीज। न्यू बच्चों के पास आइडियाज हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है। Ma'am, small things create a big impact, and for the first one, the idea would be dangerous. And if you know you only one, it's mean you have monopoly of this idea. No one has this idea, so you can have the opportunity to create and mold and fold this as per according to your choice and implement. गुड एंड whatever क्रिएटिव आंसर। यस मैडम आयशा। उसमें ये है कि हम लोग जब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लीडरशिप में सबसे पहले,
और आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकें, और सबसे जब एक लीडर की क्वालिटी सबसे ये अच्छी होती है कि वो सबको सुनता है और सबको अप्रिशिएट करता है, और फिर उसके बाद उनकी सबकी राय लेके और गुड। और जब मेजॉरिटी के हो जाए उसको हम टेक ओवर कर लें। राइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर जो ये कोट है, इट इज सेइंग सम डिफरेंट थिंग। यस मैडम। मैम सॉरी, यस एहतशाम भाई। मैम मेरे ख्याल में यहाँ पे ये जो आइडिया की लिमिटेशन, ये एक लिमिटेशन है रादर देन यूनिकनेस। अगर आपके पास एक आइडिया तो आप फंक्शनली मायोपिक हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकल के सोच नहीं रहे। जी Anyway, ये डेंजरस तब हो सकता है कि जब आइडिया आप किसी के साथ शेयर नहीं, जिस तरह आप सारे टीचर्स शेयर नहीं करते तो नेशंस डेवलप नहीं होती, वो प्रोग्रेस नहीं करती। आप वो सिर्फ उसके सेकंड हाफ को भी बेटे कंसीडर करें। राइट, कहना ठीक है है, ठीक है मैम। जी। ये हमारे पास लास्ट होगी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। जी प्लीज। हमारा टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग। राइट, तो इफ़ यू गो फॉर द फर्स्ट हाफ तो सर की बात बिल्कुल बिंग ऑन है, लेकिन सेकंड हाफ की जो आपने बात की, आपने सुना होगा कि फाइट फॉर सर्वाइवल। जी जी, आपको जीना है, आपको किसी तरह जिंदा रहना है। आपका ओनली आइडिया क्या है? मुझे जिंदा रहना है। अब जिंदा रहने के लिए आपने जो करना है, बस वही एक आइडिया है, मैंने जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए आप जो कर रहे हैं ना, उसके बाद में आपको ज़िंदगी मिलेगी, वरना आप मर जाएंगे। तो दैट इज़ द ओनली आइडिया, और वो डेंजरस है। इसी तरह अगर आप इसको अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करें कि अगर मैंने अपने क्लब को आगे लेके जाना है तो मुझे कुछ तो हटके करना होगा जिससे मेरा क्लब जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, या लायंस क्लब का दुनिया में नाम ऊपर चला जाए, या पाकिस्तानी लायंस क्लब का नाम ऊपर चला जाए। तो फॉर दैट पर्पस वो एक आइडिया, बोलते हैं ना व्हाट एन आइडिया सर जी, वो यहाँ पर आके फिट होता है। तो दिस इज द ओनली थिंग। थैंक यू यू ऑल प्लीज फॉर गिविंग योर इनपुट। बात सबकी ठीक है, समहाउ बात फिर वही है कि डिफरेंट सिचुएशंस में बी परसीव्ड इन डिफरेंट वेज। तो इस वक्त जहाँ पर इसका मकसद यही है कि नथिंग इज़ मोर डेंजरस दैन एन आइडिया। जब एक आपके पास आइडिया है एंड यू आर होल्डिंग इट टाइट कि बस ये मैंने अप्लाई करना है, मेरा बच्चा होगा, उस बड़ा होगा, वो इस आइडिया पे अमल करेगा, तो ये नो, टाइम ऑलवेज चेंजेस। एक आइडिया जो है, इट्स लाइक पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपने सारा कुछ उसी में, जैसे इन्होंने कहा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है, बस एक आइडिया। जब तक आप अपना आइडिया किसी और से शेयर नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट एन अदर आइडिया। आई वुड लाइक यू टू क्लैप फॉर मिस्टर एहतशाम, ही हैज़ गिवन द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कोड। कुछ लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं कि मेरे पास ये एक आइडिया आ गया तो मैंने इसको शेयर नहीं करना। देखिए, जो आइडिया आपको जिस वक्त टाइम सिचुएशन के हिसाब से आता है ना, वो उसी टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है। जब टाइम गुजर जाता है तो वो एक वेस्ट है। तो ये नैरो माइंडेडनेस को शो कर रहा है। ठीक है जी। क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस, अब आपने ये तो सीख लिया कि क्या क्या ज़रूरतें हैं लीडरशिप की, तो अब हम इसको ज़रा प्रोसेस करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा। अब आपको सिखा ही दें, आपने कुछ क्यूरोसिटी नहीं शो की, हालांकि क्रिएटिविटी इज़ द सेकेंड नेम ऑफ क्यूरोसिटी, कि यहाँ पर ये 6 हेड्स क्या कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द 6 हेड्स, 6 thinking heads of Edward de Bono? Any one of you have an idea about it? Ji, Rehan Abid. Because it's very different from the other faculty members, and no one use this board, and with study it shows a magical thing which is very opposite from the learning and ELLI and institute. So that's why it's creative for me. In fact, मैं एक थेरी की बात कर रही हूँ। जी अहमद इस्लाम। स्टेप्स को भी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग की, तो जहाँ क्रिएटिव थिंकिंग हो तो थिंकिंग का मतलब हेड जोन है। अभी हम बात कर रहे थे आउट ऑफ द बॉक्स। आपने कभी गौर किया कि वो बॉक्स कहाँ है, वो किस चीज़ का बॉक्स है?
जिसके बारे में हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, यस ब्रेन, बट हम जब क्रिएटिव थिंकिंग कह रहे हैं वो भी तो हम यही बात कर रहे हैं ना, थिंकिंग भी तो आपके हेड जोन से रिलेटेड है। दरअसल हमने एक बॉक्स बिल्ड कर लिया है विद इन आवर ब्रेन दैट इज बेस्ड ऑन assumptions, that is based on your family background, your profession, your social norms, your cultural norms, religious norms, उन सब की बेस पर आपने उसको बिल्ड कर लिया है और आप उन assumptions से, उन so called अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग से बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे कि अभी हमने कुछ एक्टिविटीज़ की तो हमारे जहन में यही था कि जो इल्यूजन्स हैं उनका बस एक आंसर है, हमने ये नहीं सोचा कि दोनों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है ना। और इसी तरह हमने जो डॉट्स को ज्वाइन किया, अगर हम थोड़ा सा लाइन को आपने देखा होगा एक्सटेंड कर दें एक दो जगह से तो इजीली इट इज़ मैचेबल विद 6 स्ट्रेट लाइंस। तो बात है हमें आउट ऑफ द बॉक्स निकलना है, हमें अपनी एजम्पशंस के ये बैरियर्स को तोड़ना है। वी हैव टू जनरेट न्यू आइडियाज़ जिसमें आपकी कोई भी ये चीज़ कि इसमें पैसे कितने लगेंगे, बजट कितना लगेगा, पॉसिबल है कि नहीं। आप देखें आसमानों पर टनों हज़ारों टन वजनी जहाज़ उड़ रहा है, आप और मेरा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ हैपनिंग। अंडरनीथ आपको पता है सी के नीचे से टनल्स कई जगह पर निकली हुई, अंडरपास बने हुए हैं। इज इट पॉसिबल? हमें लगता है इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बस वो जो 7 वंडर्स कुदरती हैं बस वो कुदरती हैं, ऐसा नहीं है। अब तो दुनिया ने कितने और वंडर्स बना लिए। तो ये बात है कि जब तक आप थिंकिंग नहीं करेंगे, आप अपने इस इमेजिनेटिव बॉक्स को ब्रेक करके बाहर नहीं निकलेंगे, यू विल नॉट बी क्रिएटिव एट ऑल। और अपने आइडियाज़ जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी डेली लाइफ में। स्टार्ट टेकिंग रिस्क। क्रिएटिविटी वहीं से शुरू होगी व्हेन यू विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क। ठीक है जी, अब हम प्रोसेस करके सीखते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे की जा सकती है। बात हो रही थी 6 हेड्स की। हेड्स की जहाँ आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरत है कि एडवर्ड डी बोनो 1885 में उन्होंने ये 6 थिंकिंग हेड्स की थ्योरी प्रेजेंट की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। इनका एक सीक्वेंस है, इट स्टार्ट्स विद द ब्लू हेड एंड एंड्स ऑन द ब्लू हेड। ब्लू हेड स्टैंड्स फॉर प्रोसेस। आपके पास एक कोई भी प्रॉब्लम आता है और आप उसको टेबल पर ले आते हैं तो इट मीन्स द पर्सन हु हैज़ नोटिफाइड और आइडेंटिफाइड दैट प्रॉब्लम विल वेयर दिस हेड। फिर उसके बाद आता है जी वाइट हेड। वाइट हेड मीन्स इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन। आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रॉब्लम, अबाउट दैट ट्रबल, अबाउट दैट मैटर क्या है। अगर आप कोई नया जैसे प्रोजेक्ट ही की बात करने लगे तो आपके पास उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे कल वो हमें शायद लोन साहब को सुनने का मौका मिला, उन्होंने बताया कि हाउ ही स्टार्टेड दैट प्रोजेक्ट। तो पहले तो उनके पास था ना कुछ कि ही वांटेड टू डू समथिंग, देन ही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, उनको कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह क्लूज भी मिलते रहे एंड ही कनेक्टेड द डॉट्स एंड डिफाइन दैट व्हाट ही हैज़ टू डू। रेड हेड है जी इमोशन और इंट्यूशन को शो करता है कि आपका काम है उस चीज़ में, दिल है, यू आर इमोशनली अटैच, आपको करके कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हर एक की लाइफ में डिफरेंट थिंग्स है ना। कोई जैसे अगर इमरान खान की बात करें, उसने कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनाया, उसमें इमोशनल उसका क्या इंटरेस्ट था, बिकॉज हिज मदर सफर्ड थ्रू दैट डिजीज। और तो ये इमोशनल और इंट्यूशन के भी बीच में कुछ ना कुछ पार्ट है। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन, फियर्स। ब्लैक हैट इंडिकेट्स all the fears, all the problems that may come in the way of your project completion, that may come to succeed you towards your mission या progress करने में क्या hurdles हो सकती हैं। Next is yellow head. Yellow head is in fact showing opportunities and optimism. इसके benefits आपको क्या होंगे इस काम के करने से, अगर आप ये फैसला करते हैं तो आपको इसके क्या नताइज मिलेंगे, पॉजिटिव वाले। नेगेटिव हमने ब्लैक में डिस्कस कर लिए। देन देयर इज ग्रीन हेड। अभी आपने देखा होगा वाइल स्टार्टिंग माय सेशन, जब मुझे अपना सेशन का टाइटल भूल गया तो आई पुट ऑन ग्रीन हेड बिकॉज इट इज क्रिएटिव हेड। दिस कलर इंडिकेट्स क्रिएटिविटी।
लास्ट वन ब्लू अगेन. जब आपके पास ये ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो नाउ यू आर एबल टू टेक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर प्रोसेसिंग दैट ऑल. एम आई क्लियर? आपको सब कलर्स की समझ आ गई? डू यू थिंक दिस स्ट्रेटजी इज वायबल? हो सकता है ऐसे हम इन तमाम पहलुओं को अगर टेबल पे रखें, हमने कोई हैट नहीं पहनना होते. दिस इज जस्ट टू थिंक ऑन दीज एरियाज कि पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसमें इमोशनल अटैचमेंट देखें और फिर बाकी चीज़ों को देखें. ठीक है? तो इफ आई एम क्लियर, प्लीज क्लैप फॉर योर सेल्फ अगेन. कुछ इंडिकेशन होना चाहिए ना कि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो कि वी हैव कन्वेड द राइट मैसेज. चलिए जी, अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं. यू पीपल आर प्रोवाइडेड विद अ कलर ऑफ हेड. अभी मैंने आपको स्कीम ऑफ कलर्स बता दिया. अब आप इसी तरह ग्रुप फॉर्म कर लें. ब्लू, वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन. प्लीज हर कलर का एक पर्सन एक टेबल पर होना चाहिए. प्लीज हरी अप. आप में से ब्लू एक यहीं बैठा रहे और बाकी आपका बेटे कलर क्या है? ग्रीन. पुट ऑन इट. अच्छा कोई बात नहीं, यहां लगा लें थोड़ी देर के लिए. हरी अप. इफ यू डोंट माइंड प्लीज अपने बैग्स को जरा अगर आप नीचे रख लें फ्लोर पे थोड़ी देर के लिए. जी, वी हैव टू डू एन एक्टिविटी ऑन चार्ट पेपर. नहीं मैंने कह दिया, दे आर गोइंग टू रिमूव इट. जी बेटे, बिट कलर ऑफ हेड डू यू हैव? ब्लैक. ठीक है. आपका कलर बेटे क्या है? ब्लैक. आप सारे ब्लैक नहीं बैठ सकते, वाइट बैठे रहे. हाँ बैठ जाए. देखना देखना चेयर है. आपका कौन सा है? ब्लैक. आप दोनों में से किसी एक को रहना होगा और एक को जाना होगा. तीसरा ब्लैक कौन है? वो लेडी है, उन्हें बैठा रहने दें. आप दोनों कूच करें. हाँ एक एक हेड दो सबको. सॉरी, वाइट रिप्रेजेंट्स. वाइट रिप्रेजेंट्स भुला दिया. इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन. एक्सक्यूज मी, वन हेड फॉर वन टेबल. वन हेड फॉर वन टेबल. अपनी टीम का एक लीडर चूज करें और ये हेड उनको पहना दें. हु विल बी द स्पोक्समैन लेटर ऑन? अच्छा मैं करता हूँ. एक्सक्यूज मी प्लीज. यू आर येलो. प्लीज सर बैठ जाइए फौरन. बस फौरन बैठ जाएं. प्लीज सिट डाउन. यू प्लीज सिट डाउन इफ यू डोंट माइंड. एक्सक्यूज मी बेटे, योर कलर, कलर ऑफ हेड. आप इस टेबल पे बैठे, इस टेबल पे बैठे. इजहार साहब आप इधर आ जाएं. सर जी आप इधर आए. आ जाए थोड़ी देर के लिए प्लीज. हमें कौन सा कलर चाहिए? ये तो पेन ही आपका टूटा हुआ. हाँ बैठ जाए बेटे. ब्लैक है, आप बैठ जाए, बैठ जाए. वी नीड वन ग्रीन नाउ. अब येलो आ गए हैं वो सर. चलें जी, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन. ब्लैक, ब्लैक. आप उठे बेटे, आप चले जाएं. कोई बात नहीं, ऐश करें. आप बैठे प्लीज. आपका कलर कौन सा है? बैठे बैठे सर. जाहिद काबली साहब हरी अप. ग्रीन इधर आ जाए. वन ग्रीन इज नीडेड हियर. यहाँ पर ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए. अब इनको जाने ना दीजिए, बैठ जाएं आप भी. पेन दिया आपने मुझे सर? करना है, करना है. नहीं सर, ये कहीं से बोरो किए. इन तीनों जगहों पे ब्लू है. जी, विच कलर इज मिसिंग हियर? प्लीज सिट डाउन बेटे, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन. मैं भेज रही हूँ किसी वाइट. आई एम सेंडिंग समवन, आई एम सेंडिंग समवन. जी कोई व्हाइट कलर है तो इधर आए जी प्लीज. व्हाइट कलर इधर आ जाए. सर आपका कलर ब्लैक है ना, वाइट है? भाईजान ये टेबल पूरी हो गई थी, इसको पूरी रहने दे, मत तोड़े टेबल्स प्लीज.
ये ग्रीन Yellow आ जाता है। और ये कौन से वाइट है? 1 2 3 4 5 6। सर आप कहीं किसी और की मदद को पहुंचे, वहां पे वो प्रोफेसर टेबल इधर नहीं आए। हुआ। जी एहतशाम साहब बोलते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? हाँ जी, पूरे हो गए आपके। ग्रीन येलो ब्लू बैठा हुआ बंदा, आपका बेटे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। रेड नहीं है आपके पास? मैं रेड पकड़ा देती हूँ, फिर आपको रेड दे देती हूँ। बस ये चार्ट पेपर। जी जी सर, जो जिस कलर का हैट पहना हुआ है ना, उस कलर का उनको दे दीजिए। जी जहाँ मिक्सी बैठे हुए हैं, जो सर पे हैट पहना हुआ है वो देखो, सर पे जो हैट पहना हुआ है। एक्सक्यूज मी, अपने टेबल अपने हैट का कलर रिबन से एसोसिएट करें। डू यू हैव एनी हैट देयर? जी ग्रुप लीडर इज सपोज टू पुट ऑन दिस थिंकिंग हैट। कितना टाइम लगेगा? बस ठीक है। जी ब्रदर्स, बी क्विक, अदरवाइज वी विल मिस आउट दिस एक्टिविटी। ये पहनाए किसी लीडर को, मैडम को पहना दें। जी जी मुझे अच्छा लगेगा, लेडी इन पावर। जी विच कलर हैट डू यू हैव? ग्रीन? यस सर। एनी वन ऑफ यू हैव एनी? येलो? ठीक है जी। योर चार्ट पेपर कलर ब्लू, आपका चार्ट कलर ब्लैक है जी। आपके पास हैट तो वाइट है। नहीं लाई मैं बदलवा देता हूँ। ये आप इधर दे दें मुझे, ये मुझे दे दें, आप ये पहन लें। आपने ब्लैक पहनना है। ये चार्ट पेपर बदल लें फिर। नहीं ब्रदर, आप अपना क्यों देख रहे हैं? आप इसको हैट को देखें, इसका कलर वाइट है। चलें चलें बस ठीक है जी। नाउ आर यू रेडी फॉर द एक्टिविटी? अच्छा जी, प्लीज आपको मार्कर्स अभी प्रोवाइड कर देते हैं। पहले आप कलरफुल शीट्स को अपने टेबल पे इंश्योर करें। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है और कलरफुल शीट्स को इंश्योर करें। इज इट ऑन योर टेबल? सर आपके पास तो नहीं है। कलरफुल शीट्स आर देयर, बहुत लिमिटेड है, हमने तो इतनी ज्यादा दी है आपको। चलें एनीवेज, सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दें। आपने अपने क्लब्स को फोकस करें। लाइन्स, मेक अ बबल इन योर माउथ। ऑल ऑफ यू प्लीज मेक अ बबल इन योर माउथ। ब्लो योर माउथ। और अब सर करना पड़ेगा। जी प्लीज ऑल ऑफ यू। बस आप इनकी सबकी पिक्चर्स ले लें जल्दी से। ओके रिलीज। नाउ पे अटेंशन, अदरवाइज यू विल बी गिवन such kind of another penalty. Okay जी, the first step of creative thinking process अब हम आपको सिखाने लगे कि कैसे करनी है। ठीक है जी, आप अपनी चिट्स पर इंडिविजुअली नोट करें कि आपको अपने लायंस क्लब के लिए क्या चाहिए। What do you want for your Lions Club और from your Lions Club, दोनों लिखे जा सकते हैं। अपने लायंस क्लब में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए मैंने अभी चार्ट पे लिखने को नहीं कहा, अभी अपने हाथों में रखिए, चार्ट का यूज ना करें। अभी चिट पे लिख लें, अदरवाइज अपने पास राइटिंग पैड्स होंगे उन पर लिख लीजिए। अदरवाइज यू हैव योर मैनुअल्स, उनमें लिख लें, अपने मैनुअल्स में लिख लीजिए।
प्लीज टेक आउट योर मैनुअल्स, दीज आर फॉर द एक्टिविटीज. उनको निकालें, टेबल पे रखें, उन पे काम करें. सर अपना मैनुअल निकालिए, मैनुअल, पार्टिसिपेंट मैनुअल. आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आप सीखेंगे भी नहीं अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे. योर क्लब, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं? इंप्रूवमेंट के क्लब, सिर्फ क्लब. थिंक अबाउट योर क्लब. आप ELLIA भी कर रहे हैं अब, और सोचें ना जो कर रहे हैं उसके अलावा हट के देखें. हर कोई परफेक्ट नहीं होता. रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज अवेलेबल. आप मेरे से पूछिए प्लीज. आप लिखें इंडिविजुअली अपने अपने जो भी थॉट्स हैं, आप अपने क्लब को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको, मैं बताने लगी हूँ. अपने आप प्लीज रेज अप करें हैंड, आई विल कम टू यू. आपको अपने क्लब की बेहतरी के लिए ऐड कर लेते हैं. इसमें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट दैट योर क्लब. अच्छा मेंबर्स कह दें सर, आप मेंबर्स कह दें ना. यू वांट टू इंक्रीज योर मेंबरशिप और फीमेल मेंबरशिप इन योर क्लब. दैट इज वेरी गुड. ओके, एक्सेप्टेबल. जी सर, आप लोगों को अपने क्लब के लिए क्या दे. वैसे ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है, इट इज नॉट टू शेयर विद ईच अदर. लिसन, इंडिविजुअल एक्टिविटी, क्योंकि इसके बाद हमने एक दूसरे के आइडियाज को देखना है. इंडिविजुअल एक्टिविटी, नो प्लीज कंसल्टेशन विद अदर वंस. We have very limited time, otherwise we will not be able to complete this activity. जल्दी जल्दी इस पे ज़रा अपने अपने दिमागों को काम पे लगाएं, अपना अपना CPU रन करें. Excuse me, is there anyone who could help me to switch it on again? Power on कर दो. अच्छा चलो, please kindly do it. जब सब अपने अपना आइडिया लिख लें तो प्लीज रेज करें हैंड. जी बेटे, बस अपना अपना आइडिया एक लिखें. आपकी अपनी परसेप्शन क्या है? उस्मान भाई, आपकी अपनी परसेप्शन क्या है? बेटे आपकी अपनी परसेप्शन क्या है? व्हाट डू यू वांट कि आपके क्लब में होना चाहिए? एक लिखना है, एक. इन चार में से कोई एक फाइनल कर लेना, उसके अराउंड सर्कल बना लें. वन आइडिया फ्रॉम एवरी पर्सन. वन आइडिया फ्रॉम एवरी पर्सन. काबली भाई अपना आइडिया लहदा लिखवाएं. आपका आइडिया, आपका आइडिया, आपका आइडिया, आपका आइडिया. नहीं, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं यही तो हैरान हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे नहीं हैं. बस अपना भाई आपने लिखना, ठीक है. अभी हम आपको मशवरा करने का टाइम देंगे ना, लेकिन अगर आप मिलके पहले ही एक आइडिया लिख लेंगे फिर उसमें मशवरा कहाँ गया? आपने अपनी इंडिविजुअल इनपुट देनी है ना. आप अपने क्लब को कहाँ देखते हैं? मे बी आप मेंबरशिप के लिए देख रहे हैं तो ये कोई सर्विस प्रोजेक्ट के लिए देख रहे हों, ये कोई डोनेशन देने या कोई ग्रांट लेने की बात कर रहे हों. ठीक है, गुड, राइट. सर आप अकेले तनहा क्यों बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 लेडी. इधर आ जाए, मार्जिन है. कोई बात नहीं सर, दो बैठे हुए हैं. आ जाए, मैं आपको कहीं ना कहीं तो बिठाऊंगी. 1 2 3 4 5 6. इधर आइए सर आप. कोई बात नहीं, ये ले बेटा. क्रिएटिव थिंकिंग की क्लास में आप इतनी नॉन क्रिएटिव बातें ना करें. अच्छा जी, यू ऑल आर डन. लेट्स गो फॉर द सेकेंड राउंड. वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड राउंड. सस्पेंड जजमेंट. इसका क्या मतलब है? सस्पेंड जजमेंट, जजमेंट नहीं करनी. अपना आइडिया दूसरे से शेयर करें और उनसे कोई ओपिनियन लेके अपने आइडिया को एनहेंस करें कि किस तरह क्या. जैसे अभी सर ने लिखा हुआ है, मेंबर तो इंक्रीज करना है, लेकिन कौन सा? डोनर मेंबर. स्पेसिफिक हो गया. इसी तरह आप एक दूसरे से मशवरा करके अपने अपने आइडिया को एनहेंस करें अगर आपको लगता है. दैट इज ऑप्शनल.
सर आप भी अपना कोई तजर्बा दें ना इनको, बच्चों को, इनके पढ़े आइडियाज़ देखें, दिखाएं जी सर अपना आइडिया इनको। देखें बात है कि वी डू नॉट डिस्कस विद ईच अदर, ये हमारे में प्रॉब्लम है और अभी भी हम बेटे ये नहीं कर रहे। प्लीज़ डू इट। आजम भाई आप इनके आइडियाज़ को देखें ना, जाफरी भाई आप उनका आइडिया देखें, बहुत अच्छा है। और लोगों को भी बताएं ना, ये भी तो छोड़ बेट नहीं, इनका आइडिया आप बताएं ना, बढ़ाओ। जी आपने अपना आइडिया लिखा, अब आप अपना आइडिया एक दूसरे को बताएं। जो सीनियर हैं वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जो नए हैं वो उस आइडिया को इनोवेट कर देंगे, राइट जी। अब आपने आइडियाज़ कितने लोग हैं? आप 6 लोग हैं ना, आपने यहाँ 6 आइडियाज़ लगा दें, 6 आइडियाज़ एनहेंस करके। अच्छा आप अपना चार्ट पेपर टर्न करें और उस पर अपने आइडियाज़ पेस्ट कर दें। अपने आइडियाज़ यहाँ पेस्ट करें, 6 होने चाहिए। अपने आइडियाज़ को चार्ट पेपर की बैक पर पेस्ट कर दें जी। जैसे सर डिस्कस कर लेना, तो यहाँ पर जितने आइडियाज़ आपकी टेबल पे आए ना वो यहाँ पेस्ट करें। सर आप लोगों के जितने आइडियाज़ हैं ना उसको बैक ऑफ द चार्ट पेपर पेस्ट कर दें। ये देखो पड़ी तो हुई है कितनी आपके पास स्टिकी नोट, पिटाई लगानी है, पहले परेशान कर दी इतनी ज़्यादा मैंने ये दी है स्टिकी नोट्स। Anyone needs these sticky notes? Excuse me, ये चिट्स चाहिए आपको? Anyone needs this? बेटा ये भी चाहिए होंगे, इसको बड़ा संभाल के यूज करें। Do you need this? जी 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 सर, जी सर। Excuse me अल्ताफ साहब, सर ये रख लें आप टेबल पे। You people already have these sticky chits? Okay. आप लोगों ने अपने आइडियाज़ एक दूसरे से पूछना है, डिस्कस करना है, एनहेंस करके पेस्ट कर दें। सर हो गए हैं ना? चलें एक आधा लिख के जल्दी से क्लोज करें, फिर आपको हाँ जी उठाने लगे, ज़रा घूमने फिरने का मौका देंगे। बेटे आप भी अपना लिखवा दें। हाँ कितना अच्छा वो मैनुअल है, उसमें बना भी। पेस्ट करो यहाँ पे, मैंने बाकियों को भेजना है। ये स्टिकी नोट्स जो हैं इनके ऊपर लगा लगा के लगाओ जल्दी से, हरी अप। 6 आइडियाज़ या 4 या 5 जितने भी। Emerging line leaders, may I have your attention please? Done? Which group is done? Which group is done? Okay. असद भाई आपके ग्रुप का हो गया? कोई बात नहीं है, आपका हो गया ना, बस आगे बढ़ते हैं आप। जी एहतशाम भाई आपका क्लोज कर दूं अब? ठीक है। अच्छा जी एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी एंड लुक एट द स्क्रीन अगेन। थर्ड स्टेप, आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए हम दावत देंगे सभी को। ये जितने भी ग्रुप्स हैं आप सब एक एक करके उठेंगे, राउंड करें और जाकर आइडियाज़ को ABCDEF रैंक करके आए प्लीज़। ब्लैक ग्रुप आप लोग उठें, गो टू द ऑल ऑफ टेबल्स एंड मार्क दियर आइडियाज़ ABCD। A is for the best, B for the good, C for satisfaction, D for less satisfaction, go on। अपनी एक्सपर्टीज से उनको ABCD करके आए। आपने आइडियाज़ लगा दिए हैं ना चार्ट पे?
अभी उसमें से वो जो फर्स्ट आइडिया होगा ना फैंटास्टिक वाला बी में लगाएंगे, सी वाला सी में। जी वो हमने इधर ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना, अभी नहीं। अच्छा जी बेटे बहुत ज़्यादा ही आइडियाज़ लगा दिए, ठीक है आपको भी अभी मौका मिलेगा। ओह ग्रेट। आपका आइडिया कहीं और दे आती हूँ। आप इन आइडियाज़ को ABCD करें, ABCD करें। जी आपके आइडियाज़ दें मुझे, इसके ऊपर कहीं अपना नाम अच्छा हेड का कलर है ना, ये किसी के आइडियाज़ हैं, इनको ABCD करें। कोई बात नहीं, जो जिसके पास है करें। हरी आप एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी इनके लिए लाइन, वकास भाई इसको भी देखें और इसको भी देखें, ऊंचा ऊंचा पढ़ के सुनाएं भाई अपने आइडियाज़। भाईजान सारे आइडियाज़ को ABCD करना था, मुश्किल हो जाएगा। टाइम बहुत शॉर्ट दिया जाता है। जी सर अभी नहीं, अभी एक्टिविटी के बाद। चिट्स पे लिखने से ज़रा जल्दी हो जाना था। एक्सक्यूज़ मी बेटे, आपके आइडियाज़। अब आप लोग उठें और सब टेबल्स पर जाकर अपने अपने उनके आइडियाज़ को ABCD रैंक करके आएँ। तो ये किसी एक ने लिखा है, ये किसी एक ने लिखा है, किसी एक ने। अब आप किसी भी टेबल पे जाएं, वहां पर जाके जज करके आएं। एक एक जज उठ जाए एक एक टेबल से। आपकी टेबल से कौन उठकर जाना चाहेगा सबके आइडियाज़ को जज करने के लिए? कौन ज़्यादा क्रिएटिव है? सर आप ये अपने साथ वाले टेबल पे जाइए, इनको ज़रा चेक करें। जाएं बेटे, पढ़ें, देखें आपको जो आइडिया बेस्ट लगता है उसको ए करके आ जाए। आप किसी और टेबल पे चले जाएं। तो अभी कर दे, आखिरी स्लाइड है, उसके आखिरी स्लाइड है, उसके बाद समराइज कर देना। क्या ही हो गया टाइम? हाँ जी जी सर, कोई एक आइडिया जिसको आप फैंटास्टिक समझते हैं, ये कर दें उसे। अच्छा आपने कर दिया है, थैंक यू। ये ABCD आपने लगाया, ये आपका है, ठीक है ठीक है। आपके ग्रुप को जज कर लिया गया जी, ठीक है। इसमें से आप एक फैंटास्टिक आइडिया उठाएं और उसको यहाँ पर लगा दें। आपको जो बेस्ट आइडिया लगे अपना, एक बेस्ट आइडिया उठाएं, एक वन फैंटास्टिक आइडिया उठा के उधर लगाएं। सर मैं आपको बताती हूँ, नहीं उसके साथ ना फैंटास्टिक आइडिया उठा के यहाँ लिखें और उसके लिए ना ये लिस्ट फॉर स्पेसिफिक वेज, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई 4 से 5 मशवरे या स्टेप्स दें कि उसको इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा लिसन टू मी, द नेक्स्ट स्टेप, इसमें से एक फैंटास्टिक आइडिया उठाकर यहाँ पर लिखें और उसकी लिस्ट बनाएं 4 से 5 बुलेट्स में कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अचीव कैसे करेंगे आइडिया को। चलें जी करें। तो ये अच्छा सा लिखना है क्योंकि ये डिस्प्ले होगा, इसको लंच टाइम पर लोग व्यू करेंगे, विजिट करेंगे गैलरी वॉक में। सर इसमें से एक फैंटास्टिक आइडिया ले लें, कोई बात नहीं, करने दें। हाँ अच्छा हम इस फेज से क्लोज कर दिए, अब हम नेक्स्ट फेज में हैं। मैं आपको वो बता दूं नेक्स्ट फेज क्या है? नहीं डिस्कस हो गया ना सर, मैं अगला आपको बता दूं। इसमें से जो आपका सबसे हाईली रेटेड आइडिया है ना, उसको आप यहाँ लिखें। ये ग्रुप वालों को बता रही हूँ, बाहर वालों को नहीं। आप यहाँ लिखें और उसके अचीव कैसे करना, उस तक पहुँचना कैसे, उसके 6,
5 या 6 पॉइंट्स यहाँ लिख दें बुलेट्स में. प्लीज डू इट. फीडबैक को देखें कि किसको लोगों ने पसंद किया है. जैसे हमने इसे उसमें से आप चूज कर लेना मिलके. आपके तो माशाल्लाह कितने आइडियाज हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. गुड. ब्लू. अच्छा. हम ये सोच रहे थे आप एक ही जगह बैठाएंगे और वही हुआ. क्रिएटिव थिंकिंग. हाँ वो नहीं हुआ. दरअसल यही तो ट्रिक था. मुझे पता था सबने सेम कलर पिक करना. अच्छा मेरे भाइयों, लिसन टू मी. दिस ग्रुप, ब्लू ग्रुप, आप लोगों में ये आपके आइडियाज आपने किसी से नहीं चेक कराए? किसी मैं करवा देती हूँ, किसी एक से करवा के लाती हूँ. आजम भाई, आपके तजर्बे को देखते हुए इनके किसी ने आइडियाज़ को नहीं पढ़ा. आप इनको ज़रा ABCD कर देते हैं. उल्टा लिखा हुआ उल्टा. आपके आइडियाज़ गए हुए हैं. ठीक है. आपको वैसे आइडिया तो होगा आपका कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग था. उसको फैंटास्टिक के ग्रुप में लिखना है. मैं एक्टिविटी को ना थोड़ा सा कट शॉर्ट किए. फैंटास्टिक में लिखना है. मार्कर्स जी सर ये देखें पड़े जी. 2 मार्कर्स हैं. हाँ जी आप खुद भी ले लें, मैं पूछ ली. एनीबडी नीड्स मार्कर? एनीवन नीड्स मार्कर? मार्कर चाहिए? मैं भिजवाती हूँ. सर इस अपने फैंटास्टिक आइडिया की ना उसको अचीव कैसे करना है वो यहाँ पर लिखना है. कर दिया. जज़ाकल्लाह. थैंक यू आजम. ठीक है. हाँ वो आगे फर्दर करेंगे. जज़ाकल्लाह जी. दिस इज योर. अच्छा इनमें से जो आपका बेस्ट आइडिया है ना वो आपने जी यहाँ फ्रंट पर थोड़ा सा नोट कर दें बुलेट्स में. और फिर यहाँ ऐसे लिखें क्योंकि आपने प्रेजेंट करने आना है. और जो भी आएगा वो हेड पहन कर आए. ब्लू वाला हेड किधर गया? अच्छा वो है. जी लाइन्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एक्टिविटी. अपने 5 पॉइंट्स लिखिए. हाउ टू अचीव इट. आपको प्रेजेंट करने आना है. हसन किधर है? मुझे ये लाइफ स्किल्स वाला यहाँ लगा दें. ELLI के नीचे, ELLI के ऊपर यहाँ. जी बेटे क्या प्रॉब्लम? ठीक है. ये मेरे पास टेप है. I have tape with me. Done or more? Okay ji, please be attentive once again. Now I am going to invite one representative from each group to come forward and explain your fantastic idea with specific ways to achieve it. Am I clear? आप में से एक पर्सन हर ग्रुप से आएगा. अपना चार्ट लेकर आइए. अपना फैंटास्टिक आइडिया सबसे शेयर करें और उसके स्पेसिफिक वेज टू अचीव डिस्क्राइब करें. प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. रेज अप योर हैंड हु हैज़ डन इट. ये ज़रा पिकअप करें मेरे साथ. टेप उधर स्टेज पे रखना. बहुत हैवी है खाली. यहाँ पर रखवा दें. माइक दे दें. शेख साहब इधर थोड़ा से दें. माइक दे दें. Ji, you are ready? Please come. Clap for Mr. Asad. He is the first one.
असद साहब को मैं पेरी द पीकॉक का नाम देना चाहूँगी. ही इज़ वेरी इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड ऑलवेज वॉलंटियर हिमसेल्फ एज अ फर्स्ट पर्सन. बारिश का पहला कतरा यही बनते हैं, आइस ब्रेकर. हमें तो आइडिया ही नहीं था मिस्टर असद, यू possess so many qualities. So from today onward, he is Perry. जी जी प्लीज इनको वो देना माइक. He will describe his fantastic idea, what he needs for his Lions Club, और उसमें से जो बेस्ट आइडिया आप सबकी मदद से इन्होंने चूज किया है और उसको अचीव करने के लिए इन्होंने क्या स्पेसिफिक वेज अडॉप्ट जी किए. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक हैं. ये जो हेड्स वाले हैं ज़रा चेहरे मेरी तरफ करें ना ज़रा. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वेरी गुड. तो उसी सर नज़र ही नहीं आ रहे. अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक था ना जी, वो हमने उसको ब्रांडिंग को ब्रांडिंग को चूज़ किया था. देखें इज इट वर्किंग? हेलो ब्रांडिंग को चूज़ किया था. तो ब्रांडिंग में ज़ाहिर गल आजकल जो वर्ल्ड जा रहा है वो तो विदाउट ब्रांड कुछ भी नहीं है जी. आप एक छोटी सी चीज़ लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं यार ब्रांड कौन सा है, और ब्रांड कॉन्शियस लोग हम सारे ही हैं इस वक्त. मेरे ख्याल जितने हम पाकिस्तानी ब्रांड कॉन्शियस हैं, अगर हम ये ब्रांड कॉन्शियस छोड़ दें तो हमारी आधी गुर्बत वैसे ख़त्म हो जाएगी. बहरहाल अब तो बाकी चीज़ों में तो ब्रांडिंग चलती है. तो क्लब ब्रांडिंग जो है उसमें सबसे पहले हमें अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए, या उसको सबसे आज का जो सबसे बड़ा दौर है वो मार्केटिंग का है. मार्केटिंग टूल्स में अब आप उसको अब डिजिटल मार्केटिंग में ले लें, आईटीज़ में ले जाएं उसको. मतलब अब रिसेंटली अब एआई आ गई है, उसने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है. तो ये मार्केटिंग जो टूल है ये सबसे बड़ा टूल है, और जिसके ऊपर आप अपना बिजनेस और कारोबार को बहुत आगे ले जाते हैं. अब वो मार्केटिंग आपकी स्टेब्लिश हो जाती है तो एवरीबॉडी नोज़ यू भी यार आप कहाँ पे खड़े हो और क्या कर रहे हो. ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन आंसर की पूछते हैं, आप अपना उसमें नंबर्स दिया होता है. सेकंड आ जाता है उसमें मोटिवेशन. जब आप मार्केटिंग कर लेते हो तो डेफिनेटली उसके आगे मोटिवेशन शुरू हो जाती है. मोटिवेट बंदे होते हैं, वो आपकी तरफ तलक बनाने की कोशिश फ़ोन करते हैं यार ये क्या चीज़ है. वो उसको प्लीज टाइम इज वेरी शॉर्ट. ओके जैसे अच्छा जी, उसके बाद आप अवेयरनेस, आप किसके बाद उनको अवेयरनेस आ जाती है, फिर आप उसके इंसेंटिव्स देते हो भी हमारे ब्रांड का ये इंसेंटिव आप इसमें आओ तो हम आपको ये करेंगे. देन प्रमोशंस आप चलाते हो उसको. प्रमोशन के बाद आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जाते हो. प्रमोशन के बाद व्हाट वी विल डू इन द फ्यूचर. तो नेक्स्ट आप इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप. उसके बाद उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हो और उसके फॉलो बैक एंड फीडबैक्स लिखते हो. दैट्स वे यू विल बी बिकम ए गुड ब्रांडिंग, या ब्रांड बन जाते हो. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. जस्ट टेल मी वन थिंग प्लीज, ये लायंस में क्लब में कैसे ब्रांड आपने ऐड किया? सॉरी मैं वो आपका आइडिया नहीं कैच कर पाई. मैं आपको ब्रांडिंग लायंस क्लब आप जब बनाते हो तो अब मैंने एक नया नाम सॉरी मैं आपने टाइम का मुझे कहा था तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना ब्रांड मिसाल के तौर पर मैं एक क्लब बनाता हूँ ए. ठीक है, वो क्लब बन गया. अब उसको मैंने उसको ब्रांड बनाना है. ओके. जिस तरह अब हमारे क्लब्स में इस वक्त 3051 में कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो ब्रांड बन चुके हैं, जिनकी हम एग्जांपल्स देते हैं भी यार ये क्लब बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, फैसलाबाद या दूसरे लाहौर जिस तरह की. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. क्लैप फॉर हिम. जी प्लीज. प्रेजेंटर्स आर सपोज्ड टू वेयर हैट. जी हमारे पास क्रिएटिव ग्रुप आ रहा है जी, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता हुआ, ग्रीन थिंकिंग हैट ऑफ एडवर्ड डिबोनो, मिस्टर रेहान. अपना पहले आइडिया बताएं. और दूसरी साइड पर नहीं लिखा आपने. नेक्स्ट ग्रुप प्लीज बी रेडी फॉर योर टर्न. 3 minutes will be provided to every group. Mr. Rehan, hurry up, bete. Hurry up, hurry up. Quick. अपना आइडिया बताओ जल्दी से, क्या हो गया रेहान? अस्सलाम वालेकुम. हमारा आइडिया है फ्यूचर लीडरशिप डेवलपमेंट. Make a bubble. This group only. Make a bubble. चले. फ्यूचर लीडरशिप डेवलपमेंट. इसके लिए हमने जो लिस्ट ऑफ वेस्ट बनाए, सबसे पहले हमने इस चीज़ को लिया कि हमारा जो BOD है वो इस चीज़ को असेस करे कि हु वुड बी द इंटरेस्ट एंड हु वुड बी द आवर फ्यूचर लीडर ऑन क्लब लेवल. एंड व्हेन वी असेस्ड अ पर्सन
we judge their his or her skill, then we go for recognize them and motivate them to do thing. अब जब हम उसको recognize करेंगे, उसकी participation करेंगे, तो उसकी पार्टिसिपेशन के लिए हम उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी साइन करेंगे कि जो असेस किया था, अब उसको मोटिवेट किया, मोटिवेट करके हमने उसको ड्यूटी साइन कर दी कि अब वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करे. उसके बाद हम फिर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को ड्यूटी के लिए उसकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, ताकि वो जब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने जाए तो प्रॉपर ट्रेंड हो कि उसको असेस भी कर लिया, फिर रिकॉग्नाइज भी बस कर फिर उसके दिया. बाद ELLI सब करवाएंगे. थैंक यू रेहान, क्लैप फॉर हिम. नेक्स्ट ग्रुप, आर यू रेडी? जी, ब्लैक थिंकिंग हेड. आपको याद है ना ब्लैक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन, फियर्स क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या हो सकती है. जी, स्टार्ट डिस्क्राइबिंग प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले हमारी जो फैंटास्टिक में चीज़ें आ रही हैं वो हमने किया येलो ग्रुप, मेक अ बबल. डाइवर्सिटी इन मेंबरशिप होगा, और उसमें हम फीमेल्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और जॉब होल्डर्स को ऐड करेंगे, जिसमें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होंगी हमारे एरियाज़ की, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई इस तरह से. और हमारे क्लब की इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि हम उसमें कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाएं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के कोई इवेंट्स, ताकि उनको क्लब मेंबर्स को इंटरेक्ट करें वो चीज़ें. और ओके सेफ और नेक्स्ट टाइम में हम मल्टीटास्कर मेंबर्स लाएंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाँ जी, चैम्बर, सोशल मीडिया से. थैंक यू, वेरी गुड आइडिया. जितना डाइवर्सिटी होगी उतने मोर आइडियाज वी विल हैव. थैंक यू बेटे. एनी मोर प्लीज? विच ग्रुप? वाइट ग्रुप एंड ब्लू ग्रुप. ब्लू, कम फॉरवर्ड. Describe your idea and how you are going to achieve it. Mr. Altaf from Karachi. No, first and the foremost important thing for the Fantastic Club is effective. थोड़ा सा mix and match language, उर्दू में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा. सबसे जो fantastic चीज़ है किसी भी क्लब के लिए, that's effective communication. मैं समझता हूँ effective communication आपके किसी भी क्लब का एक life blood होता है. अगर आप लोगों की आपस में कोई communication नहीं है, interaction नहीं है, link नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्लब्स के जो मेंबर्स हैं वो आपसे अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. बहुत सारे, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ. एक मेरे फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, ही वाज इनटू ड्रिंकिंग हैबिट्स, अदर हैबिट्स. वो बिल्कुल जो है वो घर पे बैठे हुए थे, तो मेरे साथ वो उन्होंने अपना A levels भी कंप्लीट किया था, और चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे मेरे. तो मैंने बोला भाई कहाँ पर हो आजकल? कहते यार बस वो बिजनेस चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है. तो मैंने बोला यार ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन व्हाई डोंट यू जॉइन द लायंस क्लब विद अस? जब वो लायंस क्लब के अंदर आए, लोगों से मिले, तो शुरू में कट के रहते थे. अब ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर टू अस. अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, डिफिकल्टीज को शेयर कर रहे हैं. बिलीव यू मी, ही हैज क्विट द स्मोकिंग हैबिट्स, ही हैज क्विट द ड्रिंकिंग हैबिट्स, ही हैज क्विट बीइंग एन इंट्रोवर्ट. अब सबके साथ लाइंस का इतना डार्क फेस ना दिखाएं. डार्क फेस था लाइफ का उनको, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये कैसे हम कर सकते हैं? बाय हैविंग द मीटिंग. अच्छा ठीक है, ठीक है सर. आप मुझे ये बताएं कि आप अपने क्लब में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं? बाय हैविंग द इफेक्टिव मीटिंग्स भी ऐसी होनी चाहिए, जैसे लास्ट दिन हमें पॉइंट बताए थे कि मीटिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि दो लोग आपस में बात करें, बाकी लोग इग्नोर्ड हो, या बाकी लोग इग्नोर्ड हो, वो दो लोग इग्नोर हो जाए. देयर शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द क्लब मेंबर्स. स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या होने चाहिए? डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे डीजी साहब भी बड़ी शुरू से ही, फर्स्ट डे से ही एक बात को फोकस कर रहे हैं, और कल भी इन्होंने एम्फेसिस दिया था कि लाइफ के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लब में देखें जाहिर सी बात है डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग लोग कल्चर से, कास्ट से, टाइम इज ओवर. मिस्टर आजम, कम विद योर आइडिया. आपने अपना फैंटास्टिक आइडिया बस डिस्क्राइब करना है और जल्दी से क्विकली फास्ट फॉरवर्ड मोड पे बताना है हमें. ये सर, माइक इज हियर, माइक इज हियर. सर, Thank you very much. Our fantastic idea is equal opportunities for all with spirit to lead. And for the implementation, we have regular meetings, purposeful meeting with proper communication, and also punctuality and project report process, status of project, whether it is completed or successful or not. Then we have success stories. Whatever we have done, we will release or we will share the success stories.
कंपेटिबल कोऑपरेशन है एंड कॉर्डियल कोऑर्डिनेशन है, और उसके बाद फिर कंप्रीहेंसिव जो है कोलैबोरेशन है, फिर प्रॉपर कंसल्टेशन भी है। हमारे 4 ये बेसिक हैं कि भी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन, कोलैबोरेशन, ये 4 पिलर्स होते हैं किसी भी क्लब को लीडिंग क्लब बनाने के लिए। उसके बाद है एप्रिसिएशन अवार्ड। तो हम जो भी मतलब लोग अच्छा काम करेंगे क्लब में, अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट तौर पे शो करेंगे, उन्हें अवार्डिंग भी होगी। Thank you, sir. और Clap for उसके him. बाद क्लब मेंबरशिप Appreciation says all. Appreciation says all. तो मीडिया पे हम जो है ना हाईलाइट भी करेंगे जी, बिल्कुल, वही उसकी चीज़ें जो जितनी हैं, coverage हो, और उतना बेहतरीन है। इससे फिर स्पिरिट टू लीड टुगेदर Thank जो you, है ना sir. इमर्ज होगी। Thank you, Thank sir. Sorry because of Next. अच्छा जी, जस्ट नाउ वी हैव डन विद ऑल ऑफ द ग्रुप्स। सब ने अपनी अपनी बहुत अच्छी इंसाइटफुल ओपिनियंस भी दी और हमारे मतलब इस एक्टिविटी को एनहांस किया। जस्ट रिव्यू वंस, द 2 फर्स्ट स्टेप्स वर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप्स, जिसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आइडियाज़ को जनरेट किया, रफ आइडियाज़ को रिफाइन किया, फिल्टर किया और उसमें से फैंटास्टिक आइडियाज़ को चूज़ किया। लास्ट 2 क्रिटिकल एवेल्यूएशन और अडेप्टिंग एन आइडिया। देखें, आइडियाज़ हर एक के पास है, समटाइम्स वी डू नॉट पे दैट वैल्यू टू एवरी आइडिया। जब लेकिन आप उस पर काम करते हैं, दूसरों से ओपिनियन लेते हैं, आप रियली चाहते हैं कि आपका आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट हो, और उसके बाद ही वो वर्थ एप्लीकेशन होता है। तो बाकी के लास्ट 2 जो थे उसमें हमने उसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल एवेल्यूएशन की, दूसरों की राय ली और उसे इम्प्लीमेंट करने के प्रॉपर वेज को डिफाइन किया। हमारे उन वेज में कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन वंस यू आर ऑन द वे यू विल अचीव दैट गोल इंशाल्लाह। ऐसा ही होता है जी, आप निकल पड़ते हैं रास्ते पे तो मंजिल को पहुंच ही जाते हैं। चलें, अब इसको क्लोज करते हैं। जस्ट टेक अ व्यू, हमने सेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। क्या आप लोगों ने इफेक्टिव क्रिएटिव लर्निंग थिंकिंग सीखी? आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देखने का एक ही नज़रिया नहीं होता, देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज। ऑप्टिकल इल्यूजन से क्या सीखा? डिफरेंट सिचुएशंस, नहीं दोनों आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको लेकर आए ना इंटेलेक्चुअलिटी में, कि डिफरेंट सिचुएशन में परसीव इन डिफरेंट वेज। तो किसी को भी आप रॉन्ग नहीं कहें, डोंट से नो और रॉन्ग टू एनीवन। एग्जैक्टली। तीसरी चीज़, आपने क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को प्रैक्टिस किया। ये जो अभी हमने एक्टिविटी की है, वाज इट इफेक्टिव? डिड यू एंजॉय? ज़रा यस फिर मज़ेदार होना चाहिए अगर बात है। अच्छा जी, अब इवैल्यूएशन टाइम है, उससे पहले 1-2 कोट्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं, आपके पार्टिसिपेंट मैनुअल में भी मेंशन है, इनको पढ़ें, इनको तवज्जो दें। ये वाली ज़रा खुद ही देखिएगा, ये देखें, मैन्स माइंड स्ट्रेच टू अ न्यू आइडिया नेवर गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। आप आज ELLI में आए हैं, आप जितने लोगों से मिले हैं, सीखा है, ऐसा नहीं है कि ये रिवर्ट हो जाएगा। आपका ब्रेन एक्सपैंड हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, रिफ्रेश हुआ है, न्यू आइडियाज आए हैं। एग्जैक्टली। अब आप जब वापस आएंगे तो यू आर नॉट दैट आजम, अब आप एक ELLI ग्रेजुएट आजम साहब हैं। जी नेक्स्ट, इफ अक्सर आपने देखा होगा हम ऐसे कहते हैं कि मेरा भी इनकी तरह ही आंसर है, आई बिलीव इन हिज सेइंग, जो ये कह रहे हैं मैं भी इनसे इत्तेफाक करती हूँ। उसका क्या मतलब है? इफ एवरीबडी इज थिंकिंग अलाइक देन समबडी इज नॉट थिंकिंग। डू यू बिलीव इन इट? अगर सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं तो कोई एक नहीं सोच रहा है, एक नहीं कई नहीं सोच रहे होते, एक ही सोच रहा होता है। जी अहमद साहब, आप बिलीव करते हैं इस बात पे? एवेल्यूशन फॉर्म आपके पास है पार्टिसिपेंट मैनुअल में, ज़रा उसको निकालें। अच्छा, एक लास्ट कोटेशन जो मैंने खुद से ऐड की थी, इट इज़ वंडरफुल, कि एक जो क्विक जंप आउट ऑफ द बॉक्स है ना, इट इज़ फार बेटर देन अ लाइफ टाइम ऑफ स्टैंडर्ड थिंकिंग। अब आप ये स्टैंडर्ड थिंकिंग के बैरियर से बाहर आएँ और प्लीज़ जंप आउट ऑफ द बॉक्स। अब अपने लिए क्लैप करें दैट यू हैव लिसन टू मी पेशेंटली।
and being so kind. Thank you. Thank you so much if you liked this session. Thank you. My pleasure. Thank you, brothers and sisters. Okay, ji, we have a short time. Let's see how do you find her. ये आपकी क्लैप्स में हर एक मैं सुन रहा हूँ और ये भी देखना चाहूँगा कि कैसा रहा. मतलब ये है कि जितना स्पेशल लेक्चर था ना उसी स्पेशल तरीके से क्लैपिंग भी होनी चाहिए. हम 3 क्लैप्स 3 दफा ताली बजाएंगे वक्फे वक्त. Thank you. Really grateful to you. Thank you, everybody. Thank you. Really grateful to you.